Wow, what a phenomenal welcome for the Prime Minister. May I now request you all, ladies and gentlemen, to stand for the national anthems of the United Arab Emirates and the Republic of India. Ladies and gentlemen, you may now take your seats. I would now like to invite His Excellency Navdeep Singh Suri, Indian Ambassador to the UAE, to deliver his welcome remarks. Honorable Prime Minister, distinguished members of the delegation, ladies and gentlemen. Today is truly a historic day when we are together here at this iconic Dubai Opera House for such a special occasion. Honorable Prime Minister, sir, the Indian community here has much to be grateful for, and while we often talk about how close our relationship has become between India and UAE in defense, in the economy, in investment, and in so many other areas, the one big difference between your first visit here in August 2015 and today is the enthusiasm that the Indian community feels when they engage with their hosts here in UAE. The contribution that you personally made in August 2015 and have sustained in building this relationship means that when the Burj Khalifa next door gets lit up with the Indian tricolor, it sends a wave of energy through the Indian community. Now, of course, when the Prime Minister of India comes to UAE, an interaction with the Indian community is an integral part of the program. But today, it's more than just an address to the Indian community. It is also the occasion when a long-felt need, desire, tamanna of the Indian community is going to see fruition, which is the commencement of the first Hindu temple in Abu Dhabi,
As the screen says, this is the millennial moment. I would not be the one to stand between you and the millennial moment. प्रधानमंत्री जी, हार्दिक स्वागत आपका और बहुत बहुत शुक्रिया जो कुछ आपने हमारी कम्युनिटी के लिए यहाँ किया. Thank you. Thank you, Your Excellency. The generous gift of land for a Hindu temple by the Crown Prince of Abu Dhabi, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, is a strong and sound message to the world that spiritual inclusiveness is the way forward for global harmony. It is indeed a magnanimous gesture that reinforces the guiding vision of tolerance and harmony of the founding fathers of the UAE. Let us watch a short video which depicts the significance of this very special millennium moment. And then we will join the Vedic Shila Pujan ceremony, the sanctification of the foundation stones, live from Abu Dhabi. Some moments breeze through time. Some moments freeze in time. And some freeze time. They have the power to change the course of history, the power to create history. Often driven by ideas and ideals, inventions and innovations have helped us thrive. But values and wisdom help us survive. Of all, the one single most important idea or ideal for the survival of mankind is harmony. The harmony of humanity. Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world is one single human family. Anu bhadraha kratavoyantu vishwataha. Let noble thoughts come to us from every side. In this year of Zayed, let us smile together, share together. Let us live together and live for one another. When two nations, one which is home to hundreds of universal ideals, and another which has become a home to hundreds of nationalities. When two nations with a glorious past and a glorious future embrace and come together to lead the way for mankind, history is not just celebrated. History is created. The historic Hindu temple by BAPS Swaminarayan Sanstha in Abu Dhabi, generously supported by His Royal Highness the Crown Prince of Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, shall become a beacon of beauty, an oasis of peace, an ocean of spirituality, and the harmony of humanity. This temple, inspired by His Holiness Pramukh Swami Maharaj, will also include a cultural complex with a prayer hall, food court, library, sports area, and other facilities for the community at large. The main foundation stone was ceremonially sanctified with Vedic rituals in Akshar Deri
Gondal in India by His Holiness Mahant Swami Maharaj. And today, the Shila Pujan and Bhumi Pujan are being performed live at the very site by Pujya Ishwar Charan Swami amidst Shanti Path. स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अभी शिला की पूजा करेंगे पूज्य ईश्वर चरण स्वामी। तो जो शिला यहाँ स्थापित होने वाली है, जिनके पर ये पूरा हमारा ये यह मंदिर बनने वाला है, उस शिला की पूजा हो रही है। हरे अम्मा मई देव पृथ्वी जनयज्ञम जनम में मिजदम्मा पिबलतान्नो बरिमभि हस्ते पुष्पांजलि मादाय। हरि अम्मा जन्नेन जन्नमय चन्द्रदेवा तानि ब्रह्माणि प्रथमा न्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्द्र जत्र पूर्वे साध्या सन्धिदे शांति शांति शांति। Today we have sanctified one stone, but soon we will marvel at many stones that will form the architectural splendor of a beautiful temple. You may all be wondering what the temple might look like. It is only therefore fitting that we request the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, to reveal a model of the BAPS Hindu temple and officially launch the project. As we have just witnessed, the beautiful replica was covered by palm leaves, symbolizing the UAE, which has long served as a source of shade, shelter, and sustenance in the desert. Similarly, the BAPS Hindu temple will also provide sustenance to universal values of love, tolerance, peace, and harmony. Our beloved Prime Minister's wish is to fulfill the hopes and dreams of Indians all over the world. He has established himself as a visionary leader through his inherent passion to tap into the immense potential of India. While his eyes are focused on the stars, his feet are firmly on the ground. He has endeared himself to young and old, both in India and overseas, and he has shown tremendous care, support, and affection towards all Indians living here in the UAE. Today he has joined us, his community, to embrace the values of harmony and respect in a celebration of cultural diversity and share his vision for all of us gathered here today. I would now like to request Sri Narendra Modi to address the gathering. उपस्थित सभी महानुभाव, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे फिर एक बार आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला है।
2016 में हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी भारत आए थे। 2017 में हमारे अत्यंत महत्वपूर्ण गणतंत्र पर्व के वे मुख्य मेहमान थे। शायद कई दशकों के बाद भारत का खाड़ी के देशों के साथ इतना गहरा, इतना व्यापक और इतना वाइब्रेंट नाता बना है। आज यूएई हो, खाड़ी के और देश हों, हमारा नाता सिर्फ बायर और सेलर का नहीं रहा है, एक पार्टनरशिप का बना है। भारत इस बात के लिए गर्व करता है कि खाड़ी के देशों में 30 लाख से भी अधिक भारतीय समुदाय के लोग यहां की विकास यात्रा में भागीदार हुए हैं। मैं यूएई का, खाड़ी के देशों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उन्होंने हमारे देश के 30 लाख से अधिक लोगों को यहां भारत के बाहर जैसे उनका दूसरा घर हो, उस प्रकार का उत्तम वातावरण दिया है। भारतीय समुदाय ने भी इसे अपना ही घर मान करके उसी प्रतिबद्धता के साथ, उतने ही के साथ यहां के लोगों के सपनों को साकार करने के लिए अपने सपनों को भी यहां बोया है। और एक प्रकार से मानव समूह की पार्टनरशिप का एक उत्तम उदाहरण हम खाड़ी के देशों में अनुभव कर रहे हैं, यूएई में अनुभव कर रहे हैं। बहुत लोगों को जब आश्चर्य हुआ कि हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ने, जब मैं पिछली बार आया तब अबू धाबी में मंदिर बनाने की बात को आगे बढ़ाया। मैं हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस का सभी 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मंदिर का निर्माण, और वो भी सद्भावना के सेतु के रूप में, हम उस परंपरा में पले बढ़े हैं जहां मंदिर ये मानवता का एक माध्यम है। होली प्लेस ह्यूमैनिटी का और हार्मनी का एक कैटलिक एजेंट है। और मुझे विश्वास है कि स्थापत्य की दृष्टि से, आधुनिक टेक्नोलॉजी की दृष्टि से
मैसेजिंग की दृष्टि से ये मंदिर अपने आप में एक अनोखा तो होगा ही होगा, लेकिन विश्व समुदाय को वसुधैव कुटुंबकम जिस मंत्र को हम जिए हैं उस मंत्र का अनुभव कराने का भी अवसर प्राप्त होगा। और इसके कारण भारत की एक अपनी पहचान भी बनाने का एक माध्यम बनेगा। मैं मंदिर निर्माण से जुड़े हुए सबसे आग्रह करूंगा कि यहां के शासकों ने भारत के प्रति इतना सम्मान जताया है, भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का इतना गौरव किया है, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमसे कोई चूक न रह जाए, कोई गलती न हो जाए। मानवता के उदात्त आदर्शों विचारों को कहीं कोई खरोच ना आ जाए, इसकी जिम्मेवारी इस मंदिर निर्माण से जुड़े हुए और मंदिर से जुड़ने वाले भावी भक्तों के लिए भी एक बहुत बड़ी अनिवार्य रहेगी, ऐसा मेरी आप सबसे अपेक्षा है। आज देश विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है। ये भारत के लिए सम्मान का विषय है कि आज एक विश्व स्तर की समिट में भारत को विशेष सम्मान दिया गया है। मुझे वहां संबोधन करके लिए निमंत्रण मिला है। यहां आप लोगों के लिए भारत की जानकारी पाना मुश्किल नहीं है। अगर मैं 2 चीज बोलूंगा तो आप 10 चीजें बताएंगे, इतनी आपको भारत की जानकारी है। और एक प्रकार से यहां पर लघु भारत बसता है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा कि जिसका प्रतिनिधित्व यहां नहीं होगा। और इसलिए भारत किस तेजी से बदल रहा है, 125 करोड़ भारतीय अपने सपनों को पूरा करने के लिए किस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये आप भली भांति अनुभव कर सकते हैं। हमने वो दिन भी देखे हैं जब चलो छोड़ो यार, कुछ होने वाला नहीं है, चलो यार बिस्तरा उठाओ कहीं चले जाएं। निराशा, आशंका, दुविधा, ये कालखंड से हम गुजरे हैं। एक समय था जब देश में से आम आदमी एक सवाल पूछता था, ये संभव है क्या, ये होगा क्या, क्या हमारे भी हो सकता है क्या। ऐसे ही सवालों में सामान्य मानवी उलझा था। और वहां से चलते चलते 4 साल के भीतर भीतर देश यहां पहुंचा है कि आज देश ये नहीं पूछ रहा है, ये नहीं सोच रहा है कि होगा कि नहीं होगा, यार संभव है कि नहीं है, चलो यार दिमाग क्यों खपाए। उस मनस्थिति से आज मनस्थिति यहां पहुंची है, मोदी जी बताओ कब होगा। इस सवाल में शिकायत नहीं है, इस सवाल में विश्वास है, होगा तो अभी होगा।
2014 में वैश्विक स्तर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम 142 नंबर पे खड़े थे। यानी पीछे से गिने तो बहुत सरल हो जाएगा, आगे से गिने तो बहुत देर लग जाएगी। दुनिया में कभी किसी देश ने इतने कम समय में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार 42 क्रम जंप लगा करके 100 पर पहुंच गया। लेकिन कोई ये न सोचे कि हम वहां पर रुकने के लिए आए हैं। हम और अधिक ऊपर जाना चाहते हैं और इसके लिए जहां नीतिगत परिवर्तन करना होगा, जहां रणनीति में परिवर्तन करना होगा, जहां इम्प्लीमेंटेशन के रोड मैप में परिवर्तन करना होगा, जहां संसाधनों की प्रक्रियाओं में परिवर्तन करना होगा, जो भी आवश्यक होगा उन कदमों को उठाते उठाते हुए भारत को जितना हो सके उतना जल्दी ग्लोबल बेंचमार्क की बराबरी में लाना है। ग्लोबलाइजेशन वो चीज ऐसी नहीं है कि हम तो जहां हैं वहां बैठे और दुनिया से फायदा उठाते चले, जी नहीं। ग्लोबलाइजेशन वो चीज है जिसमें इस ग्लोब के सभी लोगों ने अपना अपना दायित्व निभाते हुए, हर किसी के साथ जुड़ते हुए, हर किसी से सीखते हुए, हर किसी को साथ लेते हुए उन ऊंचाइयों को प्राप्त करना है जो दुनिया के आखिरी छोर पर बैठा हुआ देश हो या व्यक्ति हो, उनके कल्याण के लिए भी काम आए। और तभी जाकर के तो सच्चे अर्थ में वसुधैव कुटुंबकम ये हम जी करके दिखा सकते हैं। भारत अपने एक वैश्विक दायित्व को निभाने के लिए नियति ने उसके लिए कुछ जिम्मेवारियां दी है। आज दुनिया कह रही है 21वीं सदी एशिया की सदी है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे टपक जाएगी और हम बिल्कुल हाथ ऐसे करके रहेंगे आ जाएगी। वो 21वीं सदी एशिया की सदी बनाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। तत्कालीन लाभ हो या न हो, लेकिन लंबे अरसे की भलाई के लिए हमने कदम उठाने होंगे। महात्मा गांधी हमेशा श्रेय और प्रेय इसकी चर्चा किया करते थे। क्या वो काम करना कि जो प्रेय हो या वो काम करना जो श्रेय हो? हमारी कोशिश ये है कि श्रेयस्कर कामों की ओर कदम उठाते चलें। तत्कालीन शायद प्रिय लगे या न लगे, लेकिन वो ऐसे श्रेयस्कर होंगे कि समय रहते वो प्रिय लगने वाले। कुछ सामर्थ्यवान लोग होते हैं, उनको कोई भी कदम तुरंत प्रिय लगता है। कुछ लोगों को कठिनाई होती है कि थोड़ा देर लगती है। अगर नोटबंदी करता हूं तो देश का गरीब तबका उसको तुरंत समझ आता है सही दिशा का मजबूत कदम है। लेकिन जिसकी रात की नींद चली गई हो, वो 2 साल के बाद भी अभी भी रो रहा है। 7 साल से जीएसटी कानून होगा नहीं होगा चल रहा था, हो गया। अब ये सही है कि हम भी एक मकान में रहते हैं सालों से और दूसरे मकान में जाएं, रात को
बड़ी खुशी है, आनंद है, बढ़िया मकान नया बनाया है। लेकिन जब सुबह नींद से उठते हैं तो आदतन मजबूरन बाईं ओर बाथरूम समझ करके वहीं चले जाओ तो दीवार से टकरा जाते हैं। बाद में पता चलता है तो नया घर है, यहां तो बाथरूम राइट साइड पे है। ये सबका अनुभव है कि नहीं है? अगर एक इंसान की जिंदगी में भी बदलाव से इतनी कठिनाई होती है तो 70 साल पुरानी व्यवस्था हो, एक 125 करोड़ का देश हो, आदतें जहन में हो, 2-2, 3-3 पीढ़ी उसी आदतों में जी हो, उसमें से जब बदलाव लाना है तो कठिनाइयां होती है, लेकिन ये श्रेयस्कर है। महात्मा गांधी ने जो रास्ता दिखाया था वो रास्ता है। और आज इतने कम समय में जीएसटी की कई कठिनाइयों को दूर करते करते आज एक व्यवस्था के तहत स्वीकृति पाकर के आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है। कल मैं अबू धाबी में था, कई सारे एग्रीमेंट किए, लोअर जकाम कंसेशन एग्रीमेंट, मिडिल ईस्ट अपस्ट्रीम के अंदर भारतीय कंपनी का पहली बार निवेश होना, ये पार्टनरशिप का एक उज्जवल पहलू शुरू हो रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है, मैं आज अगले कार्यक्रम के लिए मुझे पहुंचना है, इसलिए लंबा समय आपका ले नहीं रहा हूं, लेकिन आप इतनी बड़ी संख्या में आए, इतना प्यार दिया, उधर तो मेरी नजर भी नहीं पहुंचती है। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। ये मेरी टूर बड़ी जेट गति वाली टूर है। मैं करीब 70-80 घंटे कि मैं 5 देशों की यात्रा कर करके वापस लौटने वाला हूं। जॉर्डन, पैलेस्टाइन, अबू धाबी, अभी दुबई, और यहाँ कार्यक्रम करने के बाद मुझे ओमान जाना है। वहाँ भी आज बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय जन समुदाय को आज शाम को मुझे उनके भी दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, उनको भी कुछ न कुछ बातें बतानी है। लेकिन मैं फिर एक बार आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सपने आप देख रहे हैं, जो सपने आपके स्वजन भारत की धरती पर देख रहे हैं, हम सब मिलकर के समय सीमा से पहले उन सपनों को पूरा करके रहेंगे। ये विश्वास मैं आपको देता हूं। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Sure we can all agree that this morning's program echoes the warm and inspiring sentiments in the Prime Minister's wonderful speech. This has been a marvelous celebration of diversity and a prosperous future for both India, the UAE, and the people of both nations living in this wonderful country. As the Prime Minister departs our arena, I would like to kindly request that all guests continue to remain seated until we are given clearance by the security officials to leave.
Once again, if you kindly तो remain ये seated. सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे दुबई से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने दुबई के ओपेरा हाउस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया और यहीं से उन्होंने आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला भी रखी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने ये आधारशिला रखी है और ये जो मंदिर है ये दुबई और आबू धाबी राजमार्ग पर बनाया जाएगा। 55,000 वर्ग मीटर भूमि पर यह मंदिर बनकर तैयार होगा, जिसकी आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में रखी है। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन। हम उनका रुख करेंगे। अखिलेश जी, भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया और आबू धाबी में इतने बड़े मंदिर की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है और साफ तौर पर कहा है कि मानव समूह की पार्टनरशिप का ये अनूठा उदाहरण है और कहीं ना कहीं ये बड़ा सम्मान है और सम्मान के साथ साथ अब एक जिम्मेदारी भी है कि मानवता के विचारों में खरोच ना आए और मंदिर से जुड़े लोग इस सम्मान के साथ इस चीज का एहसास भी करें, जिम्मेदारी का एहसास करें कि मानवता के मूल्यों में खरोच ना आए। निश्चित तौर पे प्रीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रणनीति रही है कि जहां भी वे जाते हैं, जिस देश में भी जाते हैं, वे भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हैं और इसके अलावा भारत से संबंधित जो चीजें हैं उसे इस तरीके से पेश करते हैं ताकि वहां जो वो जिस देश में वे गए हैं उस देश के लोगों को भारत की महानता के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में पता चले। और जिस तरह का संबंध हमारा इन देशों से यूएई के साथ रहा है, अब सामान्य तौर पे यह लगता है कि हमारे यहाँ से लोग काम करने सिर्फ जाते हैं और एक उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं होती। कई बार सरकारों की तरफ से बर्ताव अच्छा नहीं होता, स्थानीय लोगों की तरफ से भारतीय जो वहाँ काम करते हैं उसका अच्छा नहीं होता। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह का से अपने देश को पेश करते हैं तो इसके दो फायदे होते हैं। एक तो वहाँ जो रहने वाले हमारे भारतीय लोग हैं उनके अंदर एक विश्वास बनता है कि हाँ, सरकार उनका ध्यान रख रही है और उनके अंदर एक आत्मविश्वास बनता है। दूसरी तरफ जो वहाँ की सरकार है, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनके अंदर भी एक भारत के प्रति सम्मान की भावना बनती है कि भारत अपने लोगों को प्यार देता है, लोगों को सम्मान देता है, अपने लोगों का ध्यान रखता है। तो ऐसे जब कोई अपने देश का प्रधानमंत्री जाके कहीं बोलता है तो इससे वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी पर निश्चित तौर पे असर पड़ता है। और जब मंदिर आप बनाते हैं तो आप जानते हैं कि वो इलाका खास तौर पे मुस्लिम बहुल इलाका है और वहां जब वहां की सरकार की तरफ से मंदिर बनाने में सहयोग किया जाता है तो एक तरह से समझे कि हमारे भारतीय लोगों के प्रति सम्मान का एक प्रदर्शन होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सुनिश्चित करते हैं कि वहाँ जो भी भारतीय हैं उनको सरकार की तरफ से अमूमन वही सम्मान मिले जो वहाँ के रहने वाले आम नागरिकों को मिलता है। तो यही रणनीति रही है प्रधानमंत्री की शुरू से ही। जब से वे विदेश जाना शुरू किए हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तब से वे इसी रणनीति पे काम करते हैं और इसका फायदा वहाँ रहने वाले भारतीय लोगों को मिलने लगा है, यह साफ साफ दिखता है। प्रीति, बिल्कुल। और जो अहम बातें उन्होंने कही, अखिलेश आपसे मंदिर के बारे में भी बात करेंगे हम कि आखिर आबू धाबी में ही मंदिर क्यों, तमाम दिलचस्प पहलू भी हैं इसके पीछे जो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो अहम बातें प्रधानमंत्री ने अभी भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कही, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि निराशा, आशंका और दुविधा के दौर से अब हम आगे बढ़ गए हैं। पहले लोग पूछते थे कि क्या ये संभव है, क्या ये होगा, और कहीं ना कहीं अपने आप से ही बात करते थे कि छोड़ो, हमें क्या लेना देना, होगा तो होगा। लेकिन अब सवाल करते हैं लोग कि मोदी जी ये बताइए कि कब ये होगा। मानसिकता में बड़ा बदलाव लोगों की। हाँ, नहीं, वे यही बताना चाहते हैं वहाँ के लोगों को, आबू धाबी की सरकार को, कि भारत अब बदल रहा है और भारत पहले से ज्यादा बदल गया है और वहाँ निवेश करने की स्थितियां बन रही है। आप आए वहाँ निवेश करें। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रधानमंत्री खुद अपनी तरफ से आश्वस्त कर रहे हैं वहाँ के जो निवेशक हैं उन निवेशकों को बता रहे हैं कि भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा, भारत में बिजनेस करने की सुविधा है, भारत में सामाजिक तौर पे एक स्थिति ऐसी बनी है कि वहाँ निवेश किया जा सके और सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है कि वहाँ के निवेशकों को सुरक्षा दी जाए, निवेशकों के निवेश की सुरक्षा दी जाए। तो यह एक बहुत अहम आश्वासन होता है भारत जैसे देश की तरफ से, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी बाजार की तरफ पूरे दुनिया के उन सारे लोगों की निगाहें हैं जो पैसा लगाना चाहते हैं, जिसके पास धन है लेकिन अवसर नहीं है कि वो कहाँ पैसा लगाए। क्योंकि दुनिया के बहुत सारे बाजार, आप मान लीजिए यूरोप में अब कुछ नहीं बचा करने को, तो जो बचा है वो एशिया के ही देशों में बचा है
और एशिया में भारत सबसे बड़ा देश है जहां करने को बहुत कुछ बचा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस तरह की बातें से वहां के लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। प्रीति। हाँ अखिलेश, आखिर में एक बात और आपसे करना चाहूंगी। प्रधानमंत्री ने कहा दुनिया कह रही है 21वीं सदी भारत की सदी है और आत्मविश्वास भी पिछले 4 साल में देश में बढ़ा है, ये कहा प्रधानमंत्री ने। लेकिन ये ऐसे ही हासिल नहीं होगा कि 21वीं सदी भारत की सदी है, या आप लोग को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब तक आप नाम रोशन करते आए हैं, अब और ज़्यादा इस सपने को हासिल करने के लिए आगे बढ़ना होगा। कहीं ना कहीं जो चुनौती हैं सामने, उनका भी एहसास कराया है प्रधानमंत्री ने। हाँ, निश्चित तौर पे वहाँ जो रहने वाले हमारे भारतीय हैं वो वहाँ के नागरिक नहीं होते। वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं होती जैसा कि यूरोप में या अमेरिका में आप देखते हैं कि जो वहाँ गया वहीं बस के रह गया। इन खाड़ी देशों में जो भी हमारे लोग जाते हैं वे वहाँ काम करते हैं और काम करने के बाद भारत लौटते हैं और वो लगातार अपना पैसा भेजते हैं, अपने परिवार के लोगों का वहाँ से देखभाल करते हैं। और जब वे भारत आते हैं तो वे उनके अंदर एक आश्वासन होना, उनके अंदर ये विश्वास पैदा करना कि जो पैसा आपने लगाया है वो पैसा आप यहाँ जो पैसा आपने कमाया वहाँ पे वो पैसा आप अपने देश में लगा सकते हैं, अपने देश के विकास में लगा सकते हैं, अपने बिजनेस में या अन्य काम धंधों में लगा सकते हैं। तो उनका यह कहना है कि आपको अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी 2 तरीके से। एक तो वहाँ का जो नियम कानून है उस नियम के कानून के अनुसार काम करके पैसा बनाना, और उसके बाद यह समझना कि भारत ऐसे ही नहीं चल रहा। भारत में एक स्थितियां ऐसी बन रही है कि अगर आप अपना पैसा लगाएंगे देश में तो आपके पैसे से व्यापार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा और आप वहां भी तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि आमतौर पे लोग यहाँ रोजगार न मिलने के कारण खाड़ी देशों में चले जाते हैं और जब खाड़ी देशों में जाते हैं फिर कई बार होता है कि यहाँ आते हैं तो उनके हाथ में निराशा लगती है कि यहाँ जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है, पूरा जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है उस पर उन्हें विश्वास नहीं होता और फिर वे वापस चले जाते हैं। यह आने जाने का क्रम नहीं बना रहे और वहाँ के लोग यहाँ आके फिर से यहाँ बसे, अपना पैसा लगाएं और एक ऐसा वातावरण बने कि जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं उन प्रवासी भारतीयों का एक जीवंत संबंध हमारे भारत, उनके परिवार और पूरे भारत से बने। तो इसलिए प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा आश्वासन दे रहे हैं, विश्वास पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसके बाद भी काफी व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री का। अखिलेश, क्या क्या है एजेंडे में आज? देखिए, निश्चित तौर पे आज काफी महत्वपूर्ण एजेंडा है, लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री की रणनीति यह है कि खाड़ी देशों के अंदर अभी प्रधानमंत्री पैलेस्टाइन गए। पैलेस्टाइन में जाकर उन्होंने पैलेस्टाइन का जो कॉज है, वहाँ की पैलेस्टाइन की स्वतंत्रता की जो बात है उस स्वतंत्रता की बात का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत इस हक में है कि आपको स्वतंत्रता मिले और भारत इसमें साथ रहेगा। तो इसका असर खाड़ी देशों में, यूएई में भी पड़ता है और वे इस यहाँ से जाकर वहां जब गए हैं तो एक अनुकूल वातावरण बना है प्रधानमंत्री के लिए कि वहां से बिजनेस हो रहा है। क्योंकि यूएई ने पहले भरोसा दिया था कि वे अपना $75 बिलियन के करीब भारत में लगाएंगे। तो उसके अंदर जो एक अड़चने हैं, उसके अंदर जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों पे बात होगी और वो पैसा निवेश हो सके भारत में, जल्दी से वो पैसा भारत आए। इसके लिए $75 बिलियन का एक फंड भी यूएई ने बनाया है। तो इन सारे मामलों पर बातचीत आगे बढ़ाने के लिए आज का पूरा कार्यक्रम है। बिल्कुल, तो इसी एजेंडे पे प्रधानमंत्री आगे भी बढ़ेंगे और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि निवेश ज़्यादा से ज़्यादा आए, ये भी पूरी कोशिश है प्रधानमंत्री की तरफ से। थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे, अबू धाबी में ही मंदिर क्यों बन रहा है? हालांकि इस मंदिर को 2017 तक बनकर तैयार होना था, लेकिन कुछ दिक्कतें आई जिसके बाद अब नींव रखी गई है और जल्द ही ये मंदिर वहाँ भारतीय समुदाय के लोगों के लिए बनकर तैयार होगा। दुबई में हम जानते हैं कि 2 मंदिर हैं और अबू धाबी में एक चर्च जरूर है लेकिन मंदिर नहीं है। इसके पीछे क्या कोई दिलचस्प कहानी है अखिलेश? देखिए, अबू धाबी में भारतीय लोगों की संख्या काफी है और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अबू धाबी में खास तौर पे जो हिंदू लोग हैं वे अपने आप को थोड़ा अलग थलग महसूस करते हैं। तो इस अलग थलग को महसूस करने को खत्म करने का एक बड़ा अच्छा तरीका ये होता है कि वहाँ एक ऐसा सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाए, ऐसा धार्मिक केंद्र स्थापित किया जाए जहां भारतीय लोग जाएं। और जब लोग एक जगह जाते हैं तो एक दूसरे में जुड़ाव भी होता है और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके अंदर भी आपके बारे में एक कौतूहल बनता है। जहाँ ये लोग जा रहे हैं, इनका एक मंदिर है, इनका एक केंद्र है जहाँ ये जमा होते हैं, तो फिर सरकार का भी ध्यान जाता है कि हाँ
एक बड़ी कम्युनिटी बन रही है, एक बड़ा समुदाय बन रहा है जो कि मजबूत समुदाय बन रहा है। तो एक जो अनदेखी होती है भारतीय समुदाय के प्रति, वह अनदेखी दूर होती है और इसका उद्देश्य यही होता है। जहाँ भी इस तरह के सांस्कृतिक या धार्मिक केंद्र बाहर में बनाए जाते हैं और खास करके जब ऐसे देशों में, मुस्लिम देशों में जहाँ की धर्म की पूरी स्वतंत्रता नहीं है जैसा हमारे यहाँ होती है, तो यह एक बनना हमको लगता है कि उधर के भी राजनीतिक और सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन का एक संकेत है और जिससे वहाँ के रहने वाले जो भारतीय हैं उनका अलगाव दूर होता है। बिल्कुल। और करीब 30% आबादी भारतीयों की है आबू धाबी में और भारतीय समुदाय के लोग काफ़ी उत्साहित भी हैं कि अब आबू धाबी में ये मंदिर बनकर तैयार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि यूएई के दौरे पर हैं, आज प्रधानमंत्री ने दुबई के ओपेरा हाउस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया और यहीं से उन्होंने आबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला भी रखी। अखिलेश, फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े और इस तमाम बातचीत के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि जो आबू धाबी में जो मंदिर बनेगा जिसकी आधारशिला आज प्रधानमंत्री ने रखी है, ये मंदिर दुबई आबू धाबी राजमार्ग पर बनना है। 55,000 वर्ग मीटर भूमि पर ये भव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। इस मंदिर का निर्माण भारतीय शिल्पकार कर रहे हैं। ये पूरी तरह से बनकर 2020 में पूरा हो जाएगा। पश्चिम एशिया में पत्थरों से बना ये पहला हिंदू मंदिर होगा और इस मंदिर के शिलान्यास को भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच मजबूत होते रिश्तों के लिहाज से ऐतिहासिक माना जा रहा है। यूएई में भारतीय मूल के 30 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।